Okay, today we will discuss about the chapter number 10, which is the government budget and the economy. Under the head of this chapter, we will discuss about the major one topics, which are the first one is the concept of government budget. Second one is the objectives of government budget. Then third one is the structure or the component of the budget. Then budget receipt, under which the revenue receipts and the capital receipts will be discussed. Then budget expenditure, in which the revenue expenditure and capital expenditures will be there. Then the budget deficit, revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. And last one topic will be there, that is the balanced and unbalanced budget. So today we will discuss about the first one concept, which is the concept of government budget and the objectives of government budget. So the first one topic is there, that is the concept of government budget. It means what is the meaning of government budget, कि government budget actual में होता क्या है, इसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जाता है, एक्चुअल में इसमें क्या प्रेजेंट किया जाता है, it is related to which year or which kind of things we can call also. So simply we can say that Feb 1st, पहले क्या था, it was just mainly issued at the last day of the Feb. But now this is the Feb 1st date, जिसमें मेनली क्या है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बजट, एनुअल बजट जो है गवर्नमेंट का प्रेजेंट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट. द मेन क्वेश्चन अराइज कि हमारे बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है. सिंपली वी कैन कॉल, आई विल टेल यू दैट इट इज सिंपली स्टेटमेंट, कि एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल में जो किया, मींस कि हमारे बजट के अंदर 2 साल की परफॉर्मेंस शो होती है. 2 साल कौन से, एक तो जो आने वाला ईयर है, द पर्टिकुलर कमिंग ईयर, एंटायर ईयर, एज वेल एज द ईयर विच इज कंप्लीटेड ऑल्सो. तो इसमें दो चीजें हमें शो की जाती हैं बजट के अंदर. व्हाट इज दैट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, कि पिछले पूरे साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया, कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हुई. Then the second one portion will be there, that is the financial programs and policies of the government for the next 1 year, कि अगले साल के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से पॉलिसीज प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए हैं उसने, कि आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा, कितना कितना अमाउंट किस किस चीज पे स्पेंड किया जाएगा, एज वेल एज what will be the different kinds of sources of the income for the government also. So expected system is also there, कि expected revenue or expected expenditures will be shown there. So simply here mainly यहाँ पर क्या आ जाता है, that government budget is a description, ये एक ऐसी डिटेल होती है कि पिछले पूरे साल में क्या हैपेंड हुआ, as well as the another one description is there that another 1 year में कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम के साथ जो हमारी गवर्नमेंट है that will work. So यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है, that this is the financial performance of the government, descriptions of what happened during the past 1 year, as well as the focus is also placed on the another part, the budget is describing programs and policies of the government for next 1 year, कि अगले साल के लिए कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं, एज वेल एज पिछले साल का जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का रहा वो कैसा था. And whichever the policies and programs has been permitted by the government, उसको हम क्या बोलते हैं, that is known as the budgetary policy, that is known as the budgetary policy or the fiscal policy, we can call budgetary policy or fiscal policy of the government. Okay, तो गवर्नमेंट बजट को हम और भी क्या बोलेंगे कि इन विच इन द पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन विच द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज प्रिपेयर्ड, दैट इज नोन एज द बजटरी पॉलिसी और द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें मेनली दो चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं, दैट इज द रिवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट.
revenue aspect and so budget have the mainly two aspects, which is that revenue aspects and expenditure aspects. तो revenue हमारे मतलब कि बजट की जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसमें दो साइड्स आ जाती है, मींस द टू टर्म्स विल बी देयर, द रिवेन्यू टर्म एंड द एक्सपेंडिचर टर्म। तो रिवेन्यू टर्म में हमारा मेन क्या वर्क आता है ऑन द रिवेन्यू साइड, बजटरी पॉलिसी में हमें क्या पता चलता है कि रिसिप्ट्स क्या क्या है, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव करेगी, टैक्सेस रिसीप्ट्स, नॉन टैक्सेस रिसीप्ट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो इन डिटेल लेटर। ऑन द ऑपोजिट साइड एक्सपेंडिचर साइड पे गवर्नमेंट क्या शो करती है, इसमें सारे एक्सपेंडिचर्स दिखाए जाते हैं गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अपना पैसा जितना भी टोटल पैसा रिसीव होगा ये जो भी मैनेज किया हुआ है वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। ओके, सो द मेन थिंग इज देयर, तो गवर्नमेंट बजट जो प्रिपेयर किया जाता है दैट इज मेनली डन विद अ व्यू टू अचीव द ग्रोथ ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि ग्रोथ भी अचीव करनी है बट स्टेबिलिटी के साथ अचीव करनी है। सो इन शॉर्ट वी कैन कॉल कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज की स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स की, कि गवर्नमेंट बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स, कि एक्सपेक्टेड हो गया कि जो भी हुई नहीं है आने वाले साल की, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, की जो आने वाला साल है, एज वेल एज वो क्या क्या शो करता है, दैट इज ऑल्सो शो द budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability, कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, ट्विन मींस डबल ऑब्जेक्टिव इन ए सिंगल सेंस, कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो ऐसी बजटरी पॉलिसी भी शो की जाती है गवर्नमेंट की जो मेनली इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज की जाती है। सो गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट। See now the proper definition of the government budget. Government budget is a statement of expected receipts and expected expenditures of the government for the financial year to come, which reveals the budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability. You have to learn the same definition, that the government budget is a statement of expected receipts and expected expenditure of the government for which year, for the financial year to come, जो मेनली क्या क्या शो करेगा, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, which one objective, growth with stability. Now the next one concept is there, that what are the major one objectives of the government budget, the most one important topic of the chapter, कि गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो विद रेफरेंस टू आवर इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। द फर्स्ट वन major one topic, we can say the basis of the government budget, that is the GDP growth. The first one major central objective of the government वो क्या है, GDP growth. GDP refers to gross domestic product, right? Growth refers to increase, कि इंक्रीज करना जीडीपी को। नो डाउट हमारी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, कि जीडीपी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सो दैट लोगों की इनकम भी बढ़ जाए और लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज भी अवेलेबल हों। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि गवर्नमेंट बजट में क्या तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। देयर आर मेनली द टू वेज विद द हेल्प ऑफ which they just try to increase the GDP by making public investment expenditure, by making public investment expenditure, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनीज को सेटअप करती है, उस पर पैसा खर्च करती है और अपना एक्सपेंडिचर उस पर करती है, मींस कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाई जाएंगी फॉर दैट गवर्नमेंट अपना क्या करती है, उस पर स्पेंडिंग करती है। सेकेंड, एज वेल एज गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट तरीके से वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी मोटिवेट करती है
in order to spend the money for the investment purpose. Means कि goods and services की production के लिए वो private entrepreneurs को भी motivate करते हैं. अब यहाँ पर question arise हुआ कि वो कैसे motivate करते हैं. They just motivate with the help of the subsidies. गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सब्सिडीज देती है, टैक्स में रिबेट्स देती है कि आप ऐसे इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको इतना टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, इस प्लेस पे करो, सब्सिडीज दे दी जाएंगी, कंसेशनल रेट्स पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी. सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेज आल्सो द गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज द जीडीपी इन द इकोनॉमी, tries to increase the GDP in the economy. This was the first objective. Now the second one objective is there, that is the allocation of resources. Allocation of resources. Now the question arises, what do you mean by the allocation of resources? Allocation of resources means, देखो generally क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि हम अपने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि जो प्रोडक्शन करने के तरीके हैं या जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको कहाँ यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट द रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी पुट टू बी यूज इन द डिफरेंट अल्टरनेट्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू spend or use their resources in such a manner कि प्रॉफिट्स हाई हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हो. हमेशा प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या कोशिश करती हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती हैं, ऐसे ऐसे एरियाज पे एलोकेट करती हैं प्रोडक्शन के, जहां पर प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमम हो. राइट. तो मेनली लगा लो कि मे बी ऐसी भी प्रोडक्शन के उनके मतलब इन्वेस्टमेंट के एरियाज हो जो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो. मींस मे बी इट विल नॉट रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर, बट स्टिल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर will always tries to increase the profits of them. So with the help of the budgetary policy, government क्या करती है, government of country simply they just try to allocate the resources in such a manner कि वहां पर एक बैलेंस आ जाए, किस चीज के बीच में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में. क्योंकि अगर एंटायर सिस्टम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथों में दे दिया जाएगा, वहां पे क्या होगा कि मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव वाले प्रोजेक्ट्स में ही होगी, सोशल वेलफेयर वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं होगी. So generally it happened with the help of the budgetary policy, government tries to invest in that areas also कि जो किसको प्रमोट करे, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे. तो जनरली इट हैपेंड कि जो जैसे कि जो गुड्स हैं जो मेनली हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लाइक द सिगरेट्स एंड द वाइन वी कैन से, तो इस तरीके की चीजों को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है. कैसे कि गवर्नमेंट उन पर ज्यादा टैक्स लगा देती है कि कम से कम लोग इसमें इन्वॉल्व हों. बट ऑन द ऑपोजिट साइड जैसे कि ऐसे गुड्स भी हैं जो सोशली लेवल पर अच्छे हैं, जैसे कि खादी हो गया, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज के थ्रू उनको प्रमोट करती है. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रमोट द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, बट इन सच ए मैनर कि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो सोशल लेवल पर बेनिफिशियल हो. ओके, दैट इज नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव. After that, the third one objective is there, that is the provision of public good. Provision of public goods. Public goods simply क्या होता है, देखो simply which is mainly question arise हो जाता है कि public goods कौन से होते हैं. Public goods are that goods which mainly satisfy the collective demands of the people. कि वो क्या करते हैं एक साथ, जैसे कि आप लगा ले लो डिफेंस हो गया हमारा, the thing is there, infrastructure facilities हो गई, a lot of things are there which are mainly for the public, which are provided for the facilities of general public. तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में देखो मेनली क्या आ जाता है, जनरली जो इनकी सप्लाई और डिमांड होती है, मतलब सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग इनके इकोनॉमी के अंदर इनकी प्रोडक्शन जो है नहीं हो पाती, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो इस तरीके से नहीं की जाती, प्राइसेस उस अकॉर्डिंग सेटअप नहीं होते, बिकॉज ऑफ ये ऐसे गुड्स हो गए जो मेनली कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं.
लॉ ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये मेनली यहाँ पर क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, दे जस्ट ट्राई अपने बजट के थ्रू वो क्या करते हैं, फंड्स को इन गुड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं जो मेनली लोगों की बेसिक नीड्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर सके, कि गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करती है अपने बजट के थ्रू। After that, the next one topic is there, that is the redistribution of income and wealth. Redistribution refers to income and wealth means कि गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखो जनरली अगर हमारी इकोनॉमी का जो सिस्टम है वहां पर क्या है कि इनकम जो है बड़ी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिच पीपल, बहुत ज्यादा रिच पीपल भी है, बहुत ज्यादा पुअर सेक्शन भी है, मिडिल सेक्शन भी है। सो विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द टूल्स गवर्नमेंट क्या करती है, दे जस्ट ट्राई टू मेक इट इक्विलेंट विद द हेल्प ऑफ द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, विद ऑर्डर टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो वहां पर मेनली क्या होता है कि गवर्नमेंट का प्राइमरी क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक जस्टिस लेवल पे वर्क करती है, कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उन पे टैक्सेस नहीं लगाना, रिचर पे टैक्स लगा देना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, दे जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ऑल्सो ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। वो भी क्या है, गवर्नमेंट का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है फॉर द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है, दे जस्ट डू इट बाय टू वेज। व्हाट आर दैट? द फर्स्ट वन इज देयर by imposing taxes on rich। वो अमीर लोगों पे क्या करती है, टैक्सेस लगा देती है। एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, और सब्सिडीज पुअर पब्लिक को क्या प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देती है, कंसेशन दे देती है। सेकेंड वन, बाय सप्लाइंग द फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन, जैसे कि पीडीएस सिस्टम होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें वो क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को, कम प्राइजेस के ऊपर, जैसे कि एलपीजी कनेक्शन भी दिए गए पुअर पीपल को, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के अंदर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मींस जनरली क्या होता है कि देखो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं वो ऐसे एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज मिले, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो रॉ मटेरियल में या वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। तो उससे क्या होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो गई और कुछ में नहीं हुई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ देयर बजट एलोकेशन, दे जस्ट ट्राई टू प्रमोट द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। दे जस्ट गिव प्रायोरिटी टू ऑल दोज प्लेसेस जहां पर अभी बैकवर्ड है जो एरिया इकोनॉमी के अंदर। और वो कैसे करते हैं इस चीज को, बैकवर्ड एरिया में वो अपनी जो टैक्सेशन पॉलिसीज बनाते हैं वो लिबरल बनाते हैं, इजी बनाते हैं। वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है इन द टैक्सेशन, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जहां पर बैकवर्ड एरिया में स्पेसिफिक अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो उनको टैक्स में कंसेशन दी जाएंगी, उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, उनको कंसेशनल रेट पे अनदर थिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो दैट इज द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से ऐसा भी करने की कोशिश करती है कि ऐसे एरिया में भी इंडस्ट्री सेटअप की जाए जहां पर कम इंडस्ट्रीज है। आफ्टर दैट द सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू कि बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करने की कोशिश करती है। कैसे? कि वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पैसा खर्च करती है। वो क्या करती है, बहुत सी पॉलिसीज भी बनाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज भी सेटअप करती है कि जनरल पब्लिक को वहां पर जॉब्स मिल सके। तो गवर्नमेंट जो है स्कीम्स भी बनाती है, लाइक वी कैन से मैग्नरेगा इज देयर, जिसमें कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सके, एज वेल एज
वो अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस में भी पैसा लगाती है कि जनरल पब्लिक को क्या किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके. The last one objective of the government through the budget is there, that is the economic stability. Stability means जो हमने पहले भी स्टडी किया था कि स्टेबिलिटी में मेनली क्या प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट ना हो, दैट शुड बी रिड्यूस्ड. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, देखो जो मार्केट फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारी डिमांड सप्लाई, उसकी वजह से मेनली क्या होता है, ट्रेड साइकिल्स क्रिएट होते हैं कि अप डाउन्स होते रहते हैं कि सप्लाई ज्यादा हो गई, प्राइसेस कम हो गए, डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइसेस बढ़ गए. सो इट जस्ट लीड टू द साइकिल्स, चेंजेस आते रहते हैं. उससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर बहुत से फेसेस आते हैं, लाइक वी कैन कॉल रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम इन द इकोनॉमी. ये चीजें क्रिएट होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर. ओके, due to which reason, due to the free play of the market forces, demand and supply. तो यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट क्या करती है, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करती है कि इस तरीके के बिजनेस साइकिल से हमेशा क्या किया जाए, कंट्री को सेव किया जाए. सेव किया जाए मींस कि किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में क्रिएट ना हो, क्योंकि दोनों सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है. तो बजट को यहाँ पर यूज किया जाता है एज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट in order to correct the situation of the deflation and inflation. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ तरीके अडॉप्ट करती है जिससे वो क्या कर सके कि इकोनॉमी के अंदर मतलब इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी को अचीव कर सके. एंड विद द हेल्प ऑफ इट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेबिलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट पब्लिक को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे, एज वेल एज वो ग्रोथ रेट को भी इंक्रीज करने की कोशिश करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएंगे तो ज्यादा चेंजेस आएंगे. एंड गवर्नमेंट दे जस्ट ट्राई टू मेक ए लेवल, मेक अ स्टेबिलिटी, बैलेंस स्टेबिलिटी in the economy so that the people will also be motivated to invest money in the different projects. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट को भी रोक देगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रोक देगा. So with the help of the economic stability, they just try to promote the private entrepreneur also, as well as try to increase the growth and development of the economy also. So these are the main important objectives of the government, जिसमें गवर्नमेंट मेनली क्या वर्क करती है, दे जस्ट ट्राई टू मैनेज देयर रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. और इस तरीके से वो मैनेज करते हैं रिवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रिमूव किया जा सके, इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटीज चल रही है उसको रिड्यूस किया जा सके, और ओवरऑल जो ग्रोथ की प्रोसेस है हमारी इकोनॉमी के अंदर उसको कैसे अचीव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ द अलोंग विद द प्रॉपर स्टेबिलिटी. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू मैनेज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर कि उससे जीडीपी भी बढ़ सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रिमूव किया जा सके, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके. सो अल्टीमेटली हमारी जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टेबिलिटी. So these were the main one important objectives of the government budget, which were that the first one was there, that was the GDP growth, the main most one important objective of the government. After that, the second one, allocation of resources, provision of public goods, redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunity and economic stability.